We all face troubles in our life, isn't it? हम सब हमारे जीवनों में संकट का सामना करते हैं, है ना? Is there anyone here who does not face trouble? यहाँ पर क्या ऐसा कोई भी है जो संकट का सामना नहीं करता है? There is no one like that. ऐसा कोई है नहीं. Yet some people continue to make progress in life. फिर भी कुछ लोग अपने जीवन में तरक्की करते हैं. संकट आता है फिर भी तरक्की होता है. There are troubles in their life, still they make progress. They keep accomplishing things, फिर भी चीजों को मुकम्मल करते जाते हैं. They move from one success to another. एक सफलता से दूसरे सफलता की ओर बढ़ते हैं. But there are some people who remain stuck due to their troubles. लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो अपने संकटों के कारण वहीं के वहीं फंसे रहते हैं. They have no breakthrough or progress in their lives. उनके जीवन में कोई तरक्की या छुटकारा नहीं है. There is only failure after failure. सिर्फ एक विफलता के बाद दूसरा विफलता है. Why does it happen like this? क्यों ऐसा होता है? This is what I learned from today's passage. मैं आज के खंड से ये सीखता हूं. Troubles are a test of our faith in God. संकट परमेश्वर पर हमारे विश्वास की परीक्षा लेता है. If we respond towards troubles with faith, then it is just an obstacle which you will eventually cross. अगर हम उसका संकट का सामना विश्वास से करें तो संकट सिर्फ एक अड़चन है जिसको हम आखिर में पार कर लेंगे. But if we respond to it without faith, लेकिन अगर आप उस संकट का सामना परमेश्वर के ऊपर विश्वास के बिना करोगे, it will be like a wall into which you will keep crashing again and again. तो वो संकट जो है एक दीवार की तरह खड़ी रहेगी जिसमें आप बार बार जाकर टकरा कर गिर जाओगे. So my first point today, आज का पहला point, the judgment of the Lord will come against our enemies. The judgment of the Lord will come against our enemies. हमारे दुश्मनों के खिलाफ परमेश्वर का न्याय आएगा. Last 2 weeks we learned that in times of trouble, God's people do not fear. पिछले 2 हफ्ते हमने सीखा कि संकट के समयों में परमेश्वर के लोग भयभीत नहीं होते. Rather, they are made glad by the river of God's goodness. बल्कि परमेश्वर के भलाई की नदी उन्हें आनंदित करती है. This has been the psalmist's experience. भजन लिखने वाले का अनुभव यही रहा है. Who is a resident of the city of Jerusalem, जो यरूशलेम का निवासी है. God showed His goodness to Jerusalem by sending His judgment upon its enemies. परमेश्वर ने यरूशलेम के दुश्मनों पर न्याय कर कर अपनी भलाई को उस नगर के ऊपर दिखाया. And now in verse 8 to 9 the psalmist shows us how God's judgment looks like. और अब 8वें और 9वें आयत में ये भजन लिखने वाला हमें दिखाता है कि परमेश्वर का न्याय कैसा होता है. Let us read it. एक बार उसको हम पढ़े. 46वां भजन 8वें और 9वें आयत को एक बार पढ़े. Let's read 46 verse 8 and 9. Come behold the works of the Lord, how He has brought desolations on the earth. He makes wars cease to the end of the earth. He breaks the bow and shatters the spear. आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है.
वह पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है। वह धनुष को तोड़ता और भाले को 2 टुकड़े कर डालता है। And in English it's also right, he burns the chariots with fire, और रथों को आग में झोंक देता है। So in the first part of verse 8, 8वें आयत के पहले भाग में, the psalmist invites his fellow believers to come and see something. भजन लिखने वाला वहां पर अपने सहविश्वासियों को बुलाता है कुछ आकर देखने के लिए। He says, come and behold. वो कहता है आओ और देखो। What is the psalmist inviting his fellow believers to come and behold? भजन लिखने वाला अपने सहविश्वासियों को क्या आकर देखने का न्योता देता है? The answer is the works of the Lord. उत्तर है यहोवा के महाकर्म। The works of the Lord are awesome deeds with which the Lord performs. परमेश्वर के महाकर्म का मतलब है उसके भय योग्य कार्य जिसको वो करता है, उसके भय योग्य कार्य जिसको वो करता है। His awesome deeds which he performs. That's the works of the Lord. For example, in Psalm 66 and verse 5 to 6, the psalmist uses similar language and talks about how God split the Red Sea and made it into a dry land so that Israel could escape from the pursuing Egyptian army. 66वें भजन संहिता में और उसके 5वें और 6वें आयत में भजन लिखने वाला इसी भाषा का इस्तेमाल करता है और यह बताता है कि कैसे परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग में कर दिया ताकि सूखा जमीन दिखे और इज़राइल उसके पीछा करने वाले मिस्र की सेना से बच जाए। आए हम उसको एक बार पढ़े। लेट्स रीड Psalm 66 and verse 5 and 6। भजन 66 और उसका 5 और 6। Come and see what God has done. He is awesome in his deeds toward the children of man. He turned the sea into dry land. They passed through the river on foot. There did we rejoice in him. आओ परमेश्वर के कामों को देखो। ये वही भाषा है जो वहां हमारे भजन में भी लिखा गया है कि आओ परमेश्वर के महाकर्मों को देखो। वह अपने कार्यों के कारण मनुष्यों को भय योग्य देख पड़ता है। उसने समुद्र को सूखी भूमि कर डाला। वे महानद में से पांव पांव पार उतरे। वहां हम उसके कारण आनंदित हुए। The psalmist is calling his fellow believers to remember the awesome deeds which God did for them in the past. भजन लिखने वाला अपने सहविश्वासियों को बुलाता है कि उन भय योग्य कार्यों को याद करे जिसको परमेश्वर ने इतिहास में किया था। How God has been good to them, कैसे परमेश्वर उनके प्रति भला रहा है। With such awesome deeds, God is not only good to his people, but he also brings judgment upon their enemies. इन महाकर्मों से परमेश्वर सिर्फ अपने लोगों की तरफ भला ही नहीं पर उनके दुश्मनों की तरफ वो न्याय को करता है। That is why the psalmist says in our psalm, the second part of verse 8, हमारे भजन में वापस आएंगे। 8वें आयत के दूसरे भाग में भजन लिखने वाला कहता है, Who has wrought desolations in the earth? उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। And the word desolations, वो जो शब्द है वहां पर उजाड़, it refers to the condition after a battle. वो जो शब्द है वो एक युद्ध के बाद की परिस्थिति को दर्शाता है। उजाड़, डेसोलेशन।
It means, the word desolation means the destruction God has brought upon the enemies of Israel. वो जो शब्द है उजाड़, उसका मतलब है वो नाश जो परमेश्वर ने इज़राइल के दुश्मनों के ऊपर किया है. They have fled from the battlefield. There is no enemy left. परमेश्वर ने ऐसा उजाड़ किया कि युद्ध भूमि में अब कोई बाकी नहीं बचा है. सब के सब भाग चुके हैं वहां से. And people are horrified looking at what has happened to them. और लोग उनकी हालत को देखकर चकित होते हैं. इसको उजाड़ कहते हैं. This is desolation. Here I am reminded about some events from Israel's past. यहाँ पर मुझे याद आता है कुछ चीजें इज़राइल के इतिहास में से, कुछ घटनाएं. For example, in the book of Judges, उदाहरण के रूप में न्यायियों की किताब में, when Deborah and Barak were judges over Israel, जब डबोरा और बाराक इज़राइल के ऊपर न्याय करते थे, वो न्यायी थे वहां पर. At that time, Jabin, king of Canaan, used to oppress the people of Israel. उस समय कनान के राजा याबिन इज़राइल के लोगों पर अंधेर करता था. Now, in terms of war technology, Jabin's army was far superior to Israel's army. जहां तक सशस्त्रीकरण की बात है, याबिन का जो सेना है वो इज़राइल के आर्मी से कहीं आगे था. क्यों? Why? Because Jabin's army had a lot of chariots, क्योंकि उनके पास बहुत से रथे थी. एक बार हम उसको पढ़ते न्यायों का किताब 4 अध्याय और 3 आयत. लेट्स रीड जजेस चैप्टर 4 एंड वर्स 3. न्यायों का 4 अध्याय 3 आयत. जजेस चैप्टर 4 वर्स 3. Then the people of Israel cried out to the Lord for help, for he had 900 chariots of iron, and he oppressed the people of Israel cruelly for 20 years. तब इज़राइलियों ने यहोवा की दुहाई दी, क्योंकि सिसरा के पास, सिसरा यानी जो सेनापति था याबिन के सेना का, सिसरा के पास लोहे के 900 रथ थे और वह इज़राइलियों पर 20 वर्ष तक बड़ा अंधेर करता रहा. But God decides to send judgment on Israel's enemies. लेकिन परमेश्वर निर्णय करता है कि वो इज़राइल के दुश्मनों पर न्याय करेगा. God tells Israel, this is what he is going to do. परमेश्वर इज़राइल से बोलता है, I will draw Jabin's army to a place where the river Kishon flows. वो कहता है इज़राइल से कि मैं याबिन की सेना को किशोन नदी जहां बहता है वहां पर उनको खींचकर लेकर आऊंगा. एक बार 7वें आयत को पढ़े. रीड वर्स 7. दिस इज व्हाट गॉड सेज. देखिए परमेश्वर वहां क्या कहता है. एंड आई विल ड्रॉ आउट सिसेरा द जनरल ऑफ जैबिन्स आर्मी टू मीट यू बाय द रिवर किशोन with his chariots and his troops, and I will give him into your hand. तब मैं याबिन के सेनापति सिसरा को रथों और भीड़ भाड़ समेत किशोन नदी तक तेरी ओर खींच लाऊंगा और उसको तेरे हाथ में कर दूंगा. Now, probably at that time this was a dry place. The river was not flowing. ये शायद वो समय पर वो वहां पर सूखा जगह था, वहां पर नदी बह नहीं रहा था. And so let's read then what happens when the war begins. और देखिए कि युद्ध शुरू होता है तब क्या होता है. 15वें और 16वें आयत को पढ़े. Let's read verse 15 and 16. And the Lord routed Sisera and all his chariots and all his army before Barak by the edge of the sword.
And Sisera got down from his chariot and fled away on foot. And Barak pursued the chariots and the army to Harosheth Hagoim, and all the army of Sisera fell by the edge of the sword, not a man was left. तब यहोवा ने सारे रथों वरन सारी सेना समेत सिसरा को तलवार से बाराक के सामने घबरा दिया, और सिसरा रथ पे से उतर के पांव पांव भाग चला, और बाराक ने अन्य जातियों के हरोशेत तक रथों और सेना का पीछा किया, और तलवार से सिसरा की सारी सेना नष्ट की गई और एक भी मनुष्य ना बचा. इंटरेस्टिंग थिंग टू बी नोटेड देयर, वहां पर एक महत्वपूर्ण बात है जिसको वहां पर आपको ध्यान देना है. Why was the commander of an army with 900 chariots leaving his chariot and running on foot? यहां पर एक ऐसे सेना का सेनापति सिसेरा जिसके पास 900 रथे हैं, वो रथ को छोड़कर भाग रहा है पैर पर. है क्यों भाग रहा है? Why? Let us read what Deborah and Barak sang on that day after their victory in battle. आइए हम पढ़े कि दबोरा और बाराक ने युद्ध जीतने के बाद एक गीत को लिखा, और उसमें क्या लिखा है? Read Judges chapter 5 and verse 21. न्यायों का 5वां अध्याय और 21वां आयत. The torrent Kishon swept them away, the ancient torrent, the torrent Kishon. March on, my soul with might. किशोन नदी ने उनको बहा दिया, अर्थात वही प्राचीन नदी जो किशोन नदी है. हे मन हियाव बांधे आगे बढ़. On that day, God sent flash floods filling up the valley of Kishon. उस दिन पर, युद्ध के उस दिन पर, जहां पर सूखा था, उस दिन परमेश्वर एक बाढ़ भेजता है जिसके कारण किशोन की तराई पानी से भर गया. And what happened? उससे क्या होता है? The wheels of the chariots got stuck in mud. रथों के जो पहिए थे वो उसके कीचड़ में फंस गए. Jabin's army had 900 chariots, but it was of no use on that day. याबिन की सेना के पास 900 रथें थी, लेकिन उस दिन एक भी रथ काम का नहीं था. Their advantage over Israel was completely neutralized. उनकी जो बढ़त थी इज़राइल के सेना के ऊपर, उसको पूरी तरीके से बेअसर कर डाला. On that day they were defeated by Israel's army. उस दिन वो इज़राइल के सेना के सामने हार गए. But it was God's judgment. लेकिन ये परमेश्वर का न्याय था on Jabin and his army, याबिन और उसके सेना के ऊपर, in the form of an awesome deed, एक महाकर्म के रूप में. सूखा पड़ा था, बाढ़ आ जाती है. There is dry land and all of a sudden there is flash flood. That won the day for Israel. उसके कारण इज़राइल जीत जाता है. Something similar happens in 2 Chronicles chapter 20. ऐसा ही कुछ होता है दूसरे इतिहास और उसके 20वें अध्याय में. This time a large army comes against King Jehoshaphat. इस बार एक बड़ी सेना आती है यहोशापात राजा के सामने. Let's read 2 Chronicles and chapter 20 and verse 1. दूसरा इतिहास 20वां अध्याय और उसका पहला आयत. After this, the Moabites and Ammonites, and with them some of the Meunites, came against Jehoshaphat for battle. इसके बाद मोआबियों और अमोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने
युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। यहोशापात, व्हाट्स यहोशापात्स रिस्पॉन्स? यहोशापात क्या करता है? यहोशापात stands in the Jerusalem temple and prays to God. वो यरूशलेम के मंदिर में जाता है और प्रार्थना करने लगता है। And the prayer is recorded there in verse 5 to 12. और प्रार्थना को वहां पर लिखा गया है 5वें आयत से 12वें आयत में। But I want you to read verse 12. मैं चाहता हूं कि आप 12वें आयत को वहां पर पढ़ें कि वहां पर क्या लिखा गया है। 2 Chronicles chapter 20 verse 12. दूसरा इतिहास 20वां अध्याय 12वां आयत। This is Jehoshaphat's prayer. यहोशापात की प्रार्थना है। O our God, will you not execute judgment on them? For we are powerless against this great horde that is coming against us. We do not know what to do, but our eyes are on you. वो कहता है, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारे तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरे और लगी है। And then God's reply comes in verse 15 to 17. और फिर परमेश्वर का उत्तर आता है 15वें आयत से 17वें आयत में। But I want you to read verse 17. मैं चाहता हूं कि आप 17वें आयत को पढ़े। This is what God says. परमेश्वर ये कहता है 17वें आयत में, You will not need to fight in this battle. Stand firm, hold your position, and see the salvation of the Lord on your behalf, O Judah and Jerusalem. Do not be afraid and do not be dismayed. Tomorrow go out against them and the Lord will be with you. वहां लिखा है, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। God tells them they don't need to fight this battle. परमेश्वर उनसे कहता है, तुमको ये युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं है, तुमको लड़ना ही नहीं है। They just have to station themselves in the battlefield and watch. उनको सिर्फ युद्ध भूमि में जाकर खड़े रहना है और देखना है, खड़े रहना है और देखना है। They just have to station themselves and watch. And this is what they did. और उन्होंने यही किया। See what happens on the next day in battle. अगले दिन युद्ध के दिन पर क्या होता है, देखिए, पढ़िए उसको 22वें आयत से 24वें आयत में। Read verse 22 to verse 24. And when they began to sing and praise, the Lord set an ambush against the men of Ammon, Moab, and Mount Seir, who had come against Judah, so that they were routed. For the men of Ammon and Moab rose against the inhabitants of Mount Seir, devoting them to destruction. And when they had made an end of the inhabitants of Seir, they all helped to destroy one another. When Judah came to the watchtower of the wilderness, they looked toward the horde, and behold, there were dead bodies lying on the ground. None had escaped. जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अमोनियों, मोआबियों और सेर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए, क्योंकि अमोनियों और मोआबियों ने सेर के पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की। और जब वे सेर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके, तब उन सबों ने एक दूसरे का नाश करने में हाथ लगाया। जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की, तब क्या देखा कि वे भूमि पर पड़े हुए शव है और कोई नहीं बचा। The enemies of Israel fought each other and killed themselves. इज़राइल के दुश्मनों ने एक दूसरे के साथ लड़ाई कर ली और एक दूसरे को ही मार दिया। Once again, God's judgment on Israel's
enemies. ये परमेश्वर का न्याय है इज़राइल के दुश्मनों के ऊपर, in the form of an awesome deed, एक महाकर्म के रूप में. And that won the day for Israel. और इस कारण उस दिन इज़राइल जीत प्राप्त करता है. God fights for his people, and that is why they experience goodness in times of trouble. परमेश्वर अपने लोगों के लिए लड़ता है और उसी लिए संकट के समयों में वो भलाई का अनुभव करते हैं. This is mentioned in our psalm also. और इसी बात को हमारे भजन के अंदर लिखा है. हमारे भजन में एक बार वापस आएंगे. Let's come back to our psalm. And it says in the first part of verse 9 और 9वें आयत के पहले भाग में लिखता है, He makes wars cease to the end of the earth. वो पृथ्वी की छोर तक लड़ाइयों को मिटाता है. The wars that come against the people of God, God makes those wars to cease. परमेश्वर के लोगों के खिलाफ जो लड़ाइयां आती है, परमेश्वर उन लड़ाइयों को मिटाता है. And that has been Israel's experience whenever they have faced their enemies. और यही इज़राइल का अनुभव रहा है जब उन्होंने अपने दुश्मनों का सामना किया है. And God makes the war to cease by neutralizing the weapons of warfare with which their enemies come. और परमेश्वर उनके दुश्मनों के हथियारों को बेअसर करके उन लड़ाइयों को मिटाता है. That is why the psalmist says in the second part of verse 9, उसने दूसरे 9वें आयत के दूसरे भाग में देखो क्या लिखा है. He breaks the bow and shatters the spear. He burns the chariots with fire. वह धनुष को तोड़ता और भाले को दो टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है. Let us read Psalm 76 and verse 1 to 3. आइए एक बार 76 भजन और उसका पहला 3 आयत एक बार पढ़े. Psalm 76 and the first 3 verses. In Judah, God is known. His name is great in Israel. His abode has been established in Shalem, his dwelling place in Zion. There he broke the flashing arrows, the shield, the sword, and the weapons of war. That's the same thing. परमेश्वर यहूदा में जाना गया है, उसका नाम इज़राइल में महान हुआ है. उसका मंडप शालेम में और उसका धाम सिय्योन में है. वहां उसने चमचमाते तीरों को और ढाल और तलवार को तोड़कर लड़ाई ही को तोड़ डाला है. One more psalm that records the same experience. एक और भजन जो इसी प्रकार का अनुभव को दर्शाता है. Let us now also read verse 8 and 9. वहां पर ही उसी भजन में 8वें और 9वें आयत को भी पढ़े. Let's read in the same psalm, Psalm 76 verse 8 and 9. 8वां और 9वां आयत. From the heavens you uttered judgment, the earth feared and was still. When God arose to establish judgment to save all the humble of the earth. तूने स्वर्ग से निर्णय सुनाया है, पृथ्वी उस समय सुनकर डर गई और चुप रही जब परमेश्वर न्याय करने को और पृथ्वी के सब नम्र लोगों का उद्धार करने को उठा. It means that God breaks out in judgment against the enemies of his people. इसका मतलब है कि परमेश्वर अपने लोगों के दुश्मनों के खिलाफ न्याय सुनाता है. He neutralizes their strengths and gives victory to his people. वो उनकी ताकत को बेअसर करता है और अपने लोगों को जीत दिलाता है. And this is what our psalmist has also experienced. और यही हमारे भजन लिखने वाले का अनुभव भी रहा है. And this is what he wants his fellow believers to know. और वो इसी बात को वो अपने सहविश्वासियों को वो चाहता है कि उसके सहविश्वासी इसी बात को जाने. He wants us to know this. वो चाहता है कि हम इस बात को जाने. That there will be troubles in our life. हमारे जीवनों में संकट आएंगे. When all sorts of physical and spiritual enemies will make war with us. जब हर प्रकार के शारीरिक और आत्मिक दुश्मन हमसे लड़ाई करने के लिए आएंगे.
But it is not for us to fight those wars. लेकिन वो लड़ाई हमें लड़ने के लिए नहीं है. Rather, the moment we realize that we are in a battle, a day of trouble, we must understand that God's judgment is ready to go forth against your enemies. बल्कि जब हम ये जान ले कि हम एक लड़ाई में हैं, एक संकट का समय हम पर आ चुका है, हमें यह जानने की जरूरत है कि परमेश्वर का न्याय हमारे विरोधियों के तरफ जाने के लिए तैयार हो चुका है. God is going to fight on our behalf. परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा. He is going to neutralize the weapons that have been fashioned against us. जिन हथियारों को हमारी हानि के लिए बनाया गया है, उसे वो बेअसर करेगा. Now this thought can be reassuring for some of us. ये जो सोच है वो हम में से बहुत सारे लोगों के लिए आश्वासन का कारण हो सकता है, but deeply troubling for others. लेकिन कुछ लोगों के लिए ये जो सोच है वो उनके विश्वासों से बिल्कुल विपरीत है. They will say, does this mean that I am not supposed to fight the battles of my own life? क्या इसका मतलब ये है कि मुझे मेरे जीवन में आने वाले लड़ाइयों से लड़ने की जरूरत नहीं है? What about the great quote that says, God helps those who help themselves? उस कहावत के बारे में क्या जो हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर उसकी मदद करता है जो खुद की मदद करे. है ना, अक्सर हम बोलते हैं ना, परमेश्वर उसकी मदद करता है जो खुद की मदद करता है. God helps those who help themselves. What about that? That means we need to do something. उसका मतलब है हमें कुछ करने की जरूरत है. That brings me to my second point. उससे मेरा दूसरा पॉइंट शुरू होता है. Cease and know that God is God. शांत हो जाओ और जान लो कि परमेश्वर ही परमेश्वर है. For such self-confident go-getters in life, ऐसे आत्मविश्वासी व्यवसायी मनुष्यों के लिए जो ये सोचते हैं हमें कुछ करने की जरूरत है, we should do something, God himself makes an entry into this psalm. पर उन ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर खुद इस भजन में प्रवेश करता है. And he says in verse 10, the first part of it, और 10वें आयत के पहले भाग में कहता है, cease striving and know that I am God. शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर. For those of us who are using English translations where it is written cease striving or stop striving, that word striving is not there in Hebrew. It is just provided by the translator to make the meaning clear. God simply says, cease and know that I am God. This word cease, ये जो शब्द है शांत हो जाओ, हिंदी में कैसे लिखा है? हिंदी में वहां पर लिखा है कि चुप हो जाओ लिखा है. चुप हो जाओ नहीं है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ. ये जो शब्द है, this word cease, शांत हो जाओ, this has been translated in many different ways. उनको अलग अलग तरीके से उसका अनुवाद हो सकता है. What does it mean? इसका मतलब क्या है? It means to leave alone. उसका मतलब है छोड़ दो. It means to fail or give up. उसका मतलब है असफल हो जाना या हार मान लेना. To abandon or forsake all efforts. हर प्रकार के प्रयास को त्याग देना. To put off or to wait. टाल दो या प्रतीक्षा करो. To lose courage. निरुत्साहित हो जाना. To relax or fall limp. ढीला पड़ना. To feel helpless. लाचार महसूस करना. By the word
Seize. God wants to tell us that when times of troubles come, when physical or spiritual enemies are making war against you, ये जो शब्द है शांत हो जाओ, ये इस्तेमाल कर कर परमेश्वर ये कहना चाहता है कि जब शारीरिक अथवा आत्मिक दुश्मन हमसे लड़ने आए, देन तब आप क्या करना? लड़ना छोड़ देना. लीव इट अलोन. गिव अप. हार मान लो. Abandon all your efforts. हर प्रयास को त्याग दो. Put off all your plans. हर योजना को टाल दो. Lose your courage. निरुत्साहित हो जाओ. Just relax. ढीले पड़ जाओ. Know that you cannot help yourself. जान जाओ कि आप अपनी मदद खुद नहीं कर सकते हो. लाचार महसूस करो. Because the battle is not for you to fight. क्योंकि ये लड़ाई तुम्हारे लिए नहीं बनाई गई. The battle belongs to the Lord. ये परमेश्वर के लिए बनाई गई लड़ाई है. Rather, if you do the opposite of all these things, बल्कि इसके विपरीत, आप बिल्कुल इसका opposite, उसके बिल्कुल विपरीत करोगे. If you decide when trouble comes, if you decide to take up the battle, अगर जब संकट आता है, अगर आप लड़ाई अपने हाथ में ले लेते हो, you go for victory, आप जीतने का प्रयास करते हो. Try not to leave any stone unturned. You make every effort. हर मुमकिन प्रयास आप करते हो इस संकट पे जीतने का. You make plans. Plan A, and if plan A fails, plan B and plan C. आप योजनाएं बनाते हो. एक प्लान, अगर ये प्लान असफल हो जाए तो दूसरा तीसरा प्लान क्या होगा? You remain courageous. आप उत्साहित बने रहते हो. Strain yourself. आप पूरा जोर लगा देते हो इस संकट के ऊपर जीतने के लिए. You tell yourself, yes, you can do it. आप अपने आप को बोलते हो, मैं ये कर सकता हूं. Does that sound like someone? ये किसी के जैसा लगता है क्या? किसके जैसा लगता है? Have you been like this in times of trouble? क्या संकट के समयों में आप ऐसे ही हो? आ जाओ, मैं अब देखो मैं क्या करता हूं. Come on, let me, I will do something. I have the strength to do this. Then you are in big trouble. तो मैं आपको बताऊं कि आप बड़े संकट में हो. क्यों पता है? Because God says, if you are like that, then you are declaring yourself to be God. अगर आप ऐसे हो संकट के समयों में, तो परमेश्वर कहता है कि आप अपने आप को परमेश्वर घोषित कर रहे हो. That is why God rebukes such people. उसीलिए परमेश्वर ऐसे लोगों को यहां पर डांट लगा रहा है. He says, cease and know that I am God. वो कहता है ऐसे लोगों से, शांत हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूं. Know that I am God means, देखो परमेश्वर जब बोलता है जान लो कि मैं परमेश्वर हूं, इसका मतलब God is saying, परमेश्वर ये कह रहा है, acknowledge that I am sovereign over all your troubles. I am sovereign over all your enemies, not you. वो कहता है कि अंगीकार करो, परमेश्वर हमसे कह रहा है अंगीकार करो कि मैं तुम्हारे संकटों पर परम प्रधान हूं. मैं तुम्हारे दुश्मनों पर परम प्रधान हूं, तुम नहीं. Acknowledge that every battle of your life is for me to fight, not for you. अंगीकार करो कि तुम्हारे जीवन की हर लड़ाई
मुझे लड़ने के लिए है, तुम्हें लड़ने के लिए नहीं है. Does that mean when troubles come into my life, I should not do anything? क्या इसका मतलब ये है कि संकट जब आ जाए तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है? Just step back and believe everything will be all right. पीछे हट जाऊं और ये समझ लूं कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा? No, नहीं. Rather, God teaches us to make plans, take initiative, work hard, persevere, क्योंकि परमेश्वर हमें वचन के अंदर ही सिखाता है, योजनाएं बनाओ, पहल लो, परिश्रम करो और उसमें लगे रहो. But everything turns on one crucial question. लेकिन सब कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर आधारित है. What is the source of your plan and your initiative, your effort and your perseverance? तुम्हारी योजना, तुम्हारी पहल, तुम्हारी परिश्रम, तुम्हारे धीरज का स्रोत क्या है? Let me take a few examples to explain. मैं कुछ उदाहरण लेकर ये समझाना चाहूंगा. Cease or be still means to leave alone. शांत हो जाने का मतलब है छोड़ देना. Don't fight the trouble. संकट से मत लड़ो, छोड़ दो. Someone comes and tells you, we have an electrical problem at our home and we know that you can fix it. Please come and fix it. कोई आपसे आकर कहता है कि हमारे घर पर एक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, मैं जानता हूं कि आप उसको ठीक कर सकते हो, तो प्लीज आप कृपया आकर उसे ठीक कर दीजिए. If you say in your mind, sure I can fix it, अगर आप अपने मन में कहते हो बिल्कुल मैं अभी आकर उसको ठीक कर देता हूं, then you are not ceasing or leaving alone. तो आप क्या कर रहे हो? आप शांत नहीं हो रहे हो, आप संकट को छोड़ नहीं रहे हो, आप उससे लड़ने के लिए निकल रहे हो. You're fighting the trouble and making yourself God. आप संकट से लड़ने के लिए उतर रहे हो और ये घोषणा कर रहे हो कि मैं परमेश्वर हूं, मैं इसे नियंत्रित कर लूंगा, ये समस्या मेरे लिए है, मैं संभाल लूंगा. इसके बदले एक और प्रतिक्रिया हो सकती है. Instead of that, there can be another response. Instead of that, in your mind, you quickly make a prayer to God. God, you please help me to help this person. And then you go with him. आप अपने मन में जल्दी से एक प्रार्थना करते हो, हे परमेश्वर तू मुझे मदद कर इस व्यक्ति की समस्या को हल करने के लिए, और फिर आप उस व्यक्ति के साथ निकल पड़ते हो. Like Nehemiah, when he stood before the king for permission to go to Jerusalem, he quickly makes a prayer before asking permission. जैसे कि नेहमाया जो यरूशलेम जाने की अनुमति मांगने के लिए राजा के सामने खड़ा है, राजा को अनुमति मांगने से पहले जल्दी से एक प्रार्थना परमेश्वर की ओर भेजता है और फिर पूछता है. Then you are ceasing or leaving alone and yet believing that God, who is sovereign over this problem, will work through me. ऐसा करने से, जब आप ऐसा करते हो, प्रार्थना करते हो तुरंत और फिर इसके साथ निकल पड़ते हो, तो आप शांत भी हो रहे हो, आप छोड़ भी रहे हो और फिर भी परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हो कि इस समस्या पर वो परम प्रधान है और वो मेरे द्वारा कार्य करेगा. दोनों बातों में अंतर है. There is a difference between both. This time you are acknowledging that I am not God, God is God. इस बार आप इस बात का अंगीकार कर रहे हो कि मैं परमेश्वर नहीं हूं, परमेश्वर ही परमेश्वर है. Cease or be still also means to fail or give up. ये जो शब्द है शांत हो जाओ, इसका मतलब ये भी है असफल हो जाना या हार मान लेना.
For example, you know that the exam that you plan to take up is going to be a difficult one for you to clear. आप जानते हो कि जो एग्जाम आप क्लियर करने का प्रयास करने वाले हो वो आपके लिए क्लियर करना मुश्किल होने वाला है. बट यू डोंट गिव अप, लेकिन आप हार नहीं मानते हो. यू टेल योर सेल्फ नो प्रॉब्लम, आप अपने आप को कहते हो कोई बात नहीं, आई विल वर्क हार्ड, मैं परिश्रम करूंगा. I will study 16 to 18 hours a day. मैं हर दिन 16 से 18 घंटे पढ़ूंगा. In fact, I will stop going to church so that I can use my Sunday also for my studies. बल्कि मैं तो संडे कलीसिया जाना भी बंद कर दूंगा क्योंकि संडे को भी बैठकर पढ़ाई कर सकता हूं. Then you are not ceasing or failing or giving up. ऐसा करने से आप शांत नहीं होते हो, आप अपने आप को असफल नहीं समझते हो, आप हार नहीं मान रहे हो. बट इफ यू टेल योरसेल्फ, लेकिन अगर आप अपने आप से कहते हो आई नो दिस एग्जाम इज गोइंग टू बी ए स्ट्रेच फॉर मी टू क्लियर, बट आई एम गोइंग टू लीन ऑन गॉड फॉर विजडम. आप अपने आप से कहते हो कि ये एग्जाम मुझे क्लियर करना मेरे लिए मुश्किल होने वाला है, लेकिन मैं बुद्धि पाने के लिए परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहूंगा. एवरी डे बिफोर आई स्टडी आई विल रीड द बाइबल एंड प्रे. हर दिन पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं वचन को पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा. आई एम नॉट गोइंग टू मिस द संडे वर्शिप, और मैं इतवार की आराधना को मिस नहीं करूंगा. एंड आई बिलीव दैट गॉड विल हेल्प मी टू कॉम्पेंसेट दैट इन सम वे. और मैं ये विश्वास करता हूं कि परमेश्वर उस संडे के समय को जो मैं आराधना के लिए लगाता हूं, उसको, उस घटी को वो मुझे कहीं ना कहीं और पूरा करने में वो मुझे मदद करेगा. देन यू आर सीजिंग. ऐसा करने से आप शांत हो रहे हो. Then you are failing, then you are giving up. तब आप जो है अपने आप को विफल समझते हो, हार मान लेते हो. But also at the same time acknowledging that God is sovereign over my abilities and the results of this exam. लेकिन आप ये भी मान रहे हो, अंगीकार कर रहे हो कि परमेश्वर मेरे काबिलियत और इस एग्जाम के रिजल्ट के ऊपर परम प्रधान है. दोनों में फर्क है. आप कैसे रिएक्ट करते हो उसके ऊपर है. Cease also means to feel helpless. शांत होने का मतलब है लाचार महसूस करना. You know that your family will not believe in Jesus Christ. आप जानते हो कि आपका कुटुंब यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेगा. And you are the only believer in your home, और आपके घर पर आप एक ही विश्वासी हो. You should feel helpless. आपको इस परिस्थिति में लाचार महसूस होना चाहिए. But no, you don't feel helpless. लेकिन नहीं, आप अपने आप को लाचार महसूस नहीं करते हो. मैं कुछ करूंगा इसके बारे में, I'll do something. You decide to emotionally blackmail your family members to come to faith. आप सोच रहे होगे मैं अपने कुटुंबी जनों को इमोशनली ब्लैकमेल कुछ ना कुछ कर कर मैं उनको विश्वास में लेकर आ ही जाऊंगा. ट्राई एवरी स्ट्रैटेजी अंडर द सन. जो भी स्ट्रैटेजी मिले वो सब मैं अपनाऊंगा. बाय हुक और बाय क्रुक ब्रिंग देम टू फेथ. उंगली टेढ़ी करनी पड़े तो भी उनको मैं विश्वास में लेकर आऊंगा. देन यू आर नॉट सीजिंग और फीलिंग हेल्पलेस. ऐसा करने से आप शांत नहीं हो रहे हो, आप अपने आप को लाचार नहीं समझते. ऑन द अदर हैंड, इसके बदले इफ यू रियलाइज, अगर आप ये समझ लो, आई नो दैट आई कैन नॉट ब्रिंग माई फैमिली टू फेथ. मैं ये समझ चुका हूं कि मैं अपने कुटुंबी जनों को कभी भी विश्वास में लेकर नहीं आ सकता.
Because I read in Mark chapter 4 verse 26 to 27, क्योंकि मैं ये जानता हूं मरकुस के 4 अध्याय 26-27 में लिखा है, the sower sees the seed but he does not know how it grows, क्योंकि वहां लिखा है बीज बोने वाला बीज तो बोता है लेकिन उसे पता नहीं कि वो कैसे बढ़ता है. Because I read in 1 Corinthians chapter 3 and verse 6 that someone plants, someone waters, but it is God who causes the growth. क्योंकि मैंने पहले कुरिन्थियों के 3 अध्याय 6वें आयत में पढ़ा है कि लगाता कोई और है, सींचता कोई और है, लेकिन परमेश्वर ही उसे बढ़ोतरी देता है. I am going to stop all my emotional blackmailing. हर प्रकार की इमोशनल ब्लैकमेलिंग को मैं बंद कर दूंगा. And now pray to God, और परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, who is the Lord of the harvest, जो इस फसल का प्रभु है, that he make the gospel to bear fruit in the lives of my family members, कि वही परमेश्वरी सुसमाचार के उस बीज को मेरे कुटुंबी जनों के हृदय में फलवंत बनाए. Then you are ceasing or feeling helpless. ऐसा करने से आप शांत हो रहे हो, आप अपने आप को लाचार समझ रहे हो, but also acknowledging that God is sovereign over the salvation of your family members. लेकिन आप ये भी अंगीकार कर रहे हो कि आपके परिवारजनों के उद्धार के ऊपर परमेश्वर ही परम प्रधान है. Are you getting the essence? क्या आप समझ पा रहे हो इसका मूल क्या है? What is the essence? मूल बात क्या है? Your action could show that you are not ceasing, rather trying to make yourself God over your trouble. आपके जो कार्य है वो इस बात को दर्शा सकते हैं कि आप शांत नहीं हो, बल्कि आप अपने आप को परमेश्वर बनाने का प्रयास कर रहे हो अपने ताकत से, by your own strength. But the same action later on could show that you are ceasing. लेकिन वही कार्य को थोड़ी देर के बाद आप फिर से करते हो तो वो ये दर्शाता है कि आप शांत हो रहे हो. Because this time you are trying to do it with the strength that God supplies. क्योंकि इस बार आप उसको परमेश्वर के सामर्थ्य से कर रहे हो. You are praying, आप प्रार्थना कर रहे हो. You are submitting to God's word, आप परमेश्वर के वचन के अधीन हो रहे हो. You are giving God priority, आप परमेश्वर को प्राथमिकता दे रहे हो. Therefore, this time God is doing the troubleshooting, क्योंकि इस बार परमेश्वर संकट मोचन कर रहा है, हम खुद नहीं. God is sending judgment on the enemies working against your life. परमेश्वर अपना न्याय भेज रहा है उन दुश्मनों के ऊपर जो आपके जीवन के विरुद्ध कार्य कर रहा है. Do you know why God demands this attitude from His people? क्या आप जानते हो कि परमेश्वर अपने लोगों से ऐसा रवैया क्यों चाहता है? Because the ultimate purpose of everything is that God should be glorified. क्योंकि हर एक बात का आखिरी उद्देश्य एक ही है कि परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए. If you fix the electrical problem in your self confidence, then God does not get the glory. अगर आप उस इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम को अपने आत्मविश्वास से जाकर ठीक कर देते हो तो महिमा परमेश्वर को नहीं मिल रही है. Therefore many times God will allow you to fail. उसीलिए परमेश्वर बहुत बार आपको विफलता की ओर ले जाएगा. But if you pray before fixing it and it gets fixed, God gets the glory in your life. लेकिन आप उसको ठीक करने से पहले आप जल्दी से प्रार्थना करते हो तो आपके जीवन में महिमा परमेश्वर को जा रही है. Therefore, God helps you to fix it. उसलिए परमेश्वर आपकी मदद करता है उसको ठीक करने में. If you try to clear the exam with your own wisdom, then God does not get the glory. अगर आप अपने एग्जाम को क्लियर करने का प्रयास कर रहे हो अपनी बुद्धि से, तो परमेश्वर को क्या महिमा मिल रही है इसके अंदर? Therefore you might fail again. इसलिए ऐसा हो सकता है कि आप फिर से उसी एग्जाम में फिर से फेल हो जाओ. If you start giving priority to God over your studies, then God might help you to clear it. अगर आप आपके पढ़ाई के ऊपर परमेश्वर को प्राथमिकता देते हो
तो हो सकता है कि परमेश्वर आपको उस एग्जाम को क्लियर करने में आपकी मदद करे। बिकॉज देन गॉड गेट्स द ग्लोरी, क्योंकि वो करने से परमेश्वर को महिमा मिलती है। ऑल दिस वाइल यू हैव बीन ट्राइंग टू विन योर फैमिली टू जीसस क्राइस्ट विद ऑल योर एफर्ट्स, अभी तक आप अपने प्रयासों से अपने कुटुंब को यीशु मसीह में लाने का प्रयास कर रहे थे, बट गॉड हैज नॉट वर्क, लेकिन परमेश्वर ने कार्य नहीं किया है। बिकॉज देन यू विल टेक द ग्लोरी, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर वो विश्वास में आ जाए तो महिमा किसको मिलेगी? हम खुद को महिमा देंगे कि देखो मैंने उसको विश्वास में लेकर आया, मैं उसको विश्वास में लेकर आया, मैं उसको विश्वास में लेकर आई। But now you have started praying for their salvation, then God might work. लेकिन अब आपने प्रार्थना करना शुरू किया है तो परमेश्वर कार्य कर सकता है। Because then God gets the glory, क्योंकि ऐसा करने से फिर परमेश्वर को महिमा मिलती है। That is why after saying cease and know that I am God, इसीलिए ये कहकर कि शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं, God says in verse 10, परमेश्वर 10वें आयत में कहता है, I will be exalted among the nations, I will be exalted on the earth. वो कहता है मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं। God wants to be exalted over everyone. परमेश्वर सब पर महान होना चाहता है। God wants to be exalted over everyone. परमेश्वर सब पर महान ठहरना चाहता है। That is why he decides who will win the battle. उसीलिए वो निर्णय करता है कि लड़ाई कौन जीतेगा। When he defeats our enemies and we give him the praise, God is exalted. जब वो हमारे दुश्मनों को हराता है और हम उसको स्तुति देते हैं तो परमेश्वर महान ठहरता है। And that is what he wants, और वो इसी बात को हमसे चाहता है। All these things make the psalmist to confess again and again the same thing. ये सारी बातों को बता कर वो एक ही बात का अंगीकार बार बार कर रहा है। He repeats the confession that he made in verse 7. जो अंगीकार को उसने 7वें आयत में किया उसको फिर दोहराता है यहाँ पर। He says in verse 11, 11वें आयत में कहता है, The Lord of hosts is with us, the God of Jacob is our stronghold. वो कहता है सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। In other words, God is with us in times of trouble and he is our stronghold who protects us from these troubles. दूसरे शब्दों में वो कह रहा है संकट के समयों में परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारा गढ़ है और वही हमें हमारे संकटों से बचाता है। Let that be our confession also. यही हमारा भी अंगीकार होना चाहिए।